So hi guys, we have 3 students from Miranda House College. I think it's an IRF 2 right now, if I'm correct. Yeah. It was an IRF 1 for a very long time and hopefully they can bring it back to that position. और आप लोगों के mainly यही doubt आ रहे थे कि arts के लिए मैं कैसे preparation करूँ. And all of these 3 students उनने arts ही पढ़ा है, ये आपको वीडियो में पता चलेगा. और इस वीडियो में हम मतलब आप लोगों के लिए भी ये बता देता हूँ, एक ही लक्ष्य रहेगा हमारा कि एक बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो 1 महीने बाद CUET में पूरे कॉन्फिडेंस से अपने एग्ज़ाम दे पाए और ये फील कर पाए कि हाँ DU तो गारंटीड है. ठीक है, तो आपको गारंटी नहीं लेनी है, ये मेरी है. डोंट वरी, आई गॉट दैट फॉर यू. तो सबसे पहले लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर CUET स्कोर एंड योर नेम एंड योर कोर्स. So my name is Khushi and my course is BA Multidiscipline Geography and Economics and my CUET score was 740. So hello everyone, I am Bhavini Singh Naruka. My CUET score was 765 and I am currently pursuing BA program with History and Geography. Hello everyone, myself Divyanshu Gupta. I'm currently pursuing History Honours and my CUET score was 752. Okay, 752. And so now just a little bit tell them कौन से सब्जेक्ट में आपने CUET एग्जाम दी थी, and if you remember the scores या फिर around the scores, डोमेन्स वाले आपके आर्ट्स वाले वो भी बता दो उनको, so that they know they're listening to the right people. हाँ. So my subjects were language में English and in domain economics, geography, political science and history. And जो मेरा टॉप स्कोर क्योंकि 3 डोमेन और 1 लैंग्वेज, सो इंग्लिश काउंट हुआ था एंड टॉप वर पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. एंड जिनके मुझे स्कोर याद है, पॉलिटिकल साइंस तो 200/200, पेपर भी ठीक ठाक ही था तो. एंड और ज्योग्राफी आई स्कोर 188 एंड हिस्ट्री आई गेस 188. हाँ, इतना ही. If you remember, you can tell us, otherwise we know you have a good score. So my subjects were History, Geography, Political, Economics. Along with that in language I gave English. So I scored 100 on 100, like 200 on 200 in History and Political Science. Whereas in English and Geography I lost like one question was wrong in each of them. Okay. Okay, so I had History, Pol Science, Geography, Psychology and one English as a language subject. I scored full in like History and Pol Science and one was 194 in like Psychology or Geography, either one of them. And yeah, English में थोड़े नंबर कटे थे because that was थोड़ा mismanagement था and lot of things. Okay, so we'll get back to Khushi over here. First, I think ये colorful paper मेरे पास है. I'll make a roadmap for you that you can use at the end of the video, and so that will be our goal. तो short में tell us your history preparation first. Next subject में move on करते रहेंगे. History के लिए and sources mostly जो इस वीडियो में होगी वो आपको DUBD ऐप पे मिल जाएगी. अगर नहीं मिलेगी even then we'll ask कि कहाँ से आपने यूज़ की थी. ठीक है, start. सो हिस्ट्री के लिए लाइक मैंने 12th अपनी घर से करी थी क्योंकि मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे, तो मैं 12th में स्कूल नहीं गई थी एंड मैंने कोचिंग ली थी. सो मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी तो वहाँ से मेरा पूरा कवर हो गया था, बट तब भी मुझे थोड़े डाउट्स थे. तो हिस्ट्री के लिए तो ना फैकल्टी मुझे इतनी वो नहीं लगी थी, तो मैंने NCERT लाइक मैं खुद से करती थी. NCERT पढ़ती थी और मेरे एक बहुत अच्छे सीनियर जो अभी हिंदू कॉलेज में है, ही इज़ इन 2nd ईयर, अविनाश गौतम, तो उनसे मैं हेल्प लेती थी हिस्ट्री के लिए. एंड हिस्ट्री के जैसे PYQ सॉल्व करती थी और मॉक टेस्ट लगाती थी. बाकी हाँ, जैसे DUBD के मैंने करे थे, बाकी प्लेटफॉर्म्स के भी करे थे. जो मुझे फ्री में मिलता था, फ्री वाले में करती थी. पॉलिटिकल साइंस के लिए तो नहीं, let's finish history and then we'll jump on political science. So for history I would like to say कि go through each and every line of NCERT. Don't miss out on any of the boxes or figures because वो लोग पूछ लेते हैं. कोई भी NCERT की लाइन उठा के दे देंगे और पता भी नहीं चलेगा, तो कोई भी लाइन मिस मत करना. NCERT would be enough, एक लाइन पढ़ लेना सारी. And then Subject history only. yeah, history. Okay, so history, the heart and soul is NCERT only. So already board की preparation में you cover a huge chunk of the syllabus and also इस बार deleted chapters आ नहीं रहे हैं, so it's like win-win situation. So you just do this NCERT thoroughly and you're good to go. Okay, so we'll just continue over there. What I'm hearing is NCERT पे ज़्यादा focus हो. I mean, she studied at home and still she focused on the NCERTs. So and आपकी deleted chapters नहीं है, उन्होंने बोला मतलब आपकी जो new NCERT है ना उसी से सब कुछ आ रहा है. So I think over here I would recommend अभी 30 दिन बचे हैं उनके पास. 5th 8th में उनके एग्जाम है, आज 5th है, 6th 7th को वीडियो जाएगी. So how much time should they actually spend on history in a day? Maybe from what I'm hearing it should be like 2 hours, if or lesser. You can tell me. लाइक मेरे पर्सपेक्टिव से जब मेरे पास लास्ट के 30 डेज़ बचे थे और सबको ऐसा लगता है कि यार नहीं हुआ, मतलब चाहे तुम अपना सिलेबस 2 बार भी कंप्लीट कर लो, ऐसा लगेगा कुछ नहीं आता, दुनिया के सबसे बेवकूफ़ हम ही हैं. तो इसलिए लास्ट के 30 डेज़ में मैं करती थी जैसे पर सब्जेक्ट मैं 5 फुल लेंथ मॉक पेपर्स लगाती थी. अच्छा.
हाँ फुल लेंथ बिल्कुल टाइमर लगा के अपना प्रॉपरली। और हमारा तो पेपर बेस्ड था तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा हेडेक था, तो मैं वैसे करती थी। सो यू वुड रिकमेंड, यहाँ पे एक और हम लोग पूछ रहे कंप्यूटर बेस्ड की ऑनलाइन पेपर की बट दे हैव ओनली कंप्यूटर बेस्ड वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो फिर वो प्रैक्टिस paper भी based- वहीं पे आई थिंक सो राइट। हाँ that should be the place to कंप्यूटर start. बेस्ड है तो अपना उस हिसाब से करो। पेपर तो चलो अब नहीं है, वेरी वेरी लकी, मेरे तो इतने सारे मार्क्स वो पेपर चक्कर में कट गए थे। Just वो ऐसे सर्कल्स थोड़े गलत ऊपर नीचे भर दिए थे, दैट वाज द बिगेस्ट ब्रेक डाउन, क्योंकि यू कांट रीचेक क्वेश्चन ना, क्योंकि फिर ऑलरेडी आपने फिल कर दिया है। बस सीबीटी में यू हैव अ एडवांटेज टू जस्ट रीचेक द क्वेश्चंस, बट इसमें यू डोंट। So I'll tell you where you can practice mocks and PYQs. I think they already know what I'm going to say. It'll be the DUBD app. आज रामनवमी की सेल आ रही है, so that's why you can use. It's not such a wow thing. Ramnavami is a special festival. You can use code RAM50. You'll get 50% off. Free में भी I know many people नहीं चाहते हैं to buy this stuff, but I think it's recommended to actually do as many. काउंट्री में ले लो, हाँ 4 बंदे करो काउंट्री में ले लो। फ्री में भी आप स्टार्ट कर सकते हो अटेम्प्ट करना। और हाँ नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक पॉल साइंस, लेट्स पिक ऑन दैट। डिड यू हैव पॉल साइंस? Yeah, I have. ओके सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर। पॉलिटिकल Okay, so Pol Science में we have 2 books. उसमें भी I will say NCERT is enough. Just be conscious about the questions, like case based आते हैं, कुछ pictures वाले questions आते हैं, तो that you will ace by performing ऐसे mock test वगैरह, तो उसके लिए that is enough. बाकी हाँ NCERT is enough. कुछ box वाले questions होते हैं, even sources से भी question आते हैं, like कुछ article आया था पिछले बार, तो हाँ that makes importance. बाकी तो it's do fine. these questions test your comprehension or do they test your मतलब remembrance or More of retaining skills. more of retaining हाँ, skills? because तो थोड़ा मतलब factual picture से होता है उतना data. पता आपको नहीं, चलेगा pictures in the practice sense you करने have to पड़ेगा। analyze the pictures, उसके बाद वो questions put up करते हैं, तो it's more about interpretations, like how you interpret the things or pictures or like जो भी creatures उसमें होते हैं, it's more like that. हाँ ठीक है नेक्स्ट। तो पॉल साइंस में वही एनसीईआरटी तो करना ही करना है। और दूसरा एक बार पीवाईक्यूज़ देख लेना, क्योंकि पीवाईक्यूज़ से आपको आइडिया लग जाएगा किस फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज एज ऑफ नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स, वो पूरा थ्योरी बेस होता है, और एंड व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी इट्स टोटली एमसीक्यू बेस। तो वो एक चेंज आएगा जिसके लिए आपको अपना थोड़ा अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। तो गो विद ऑल द थिंग्स, जो भी डिटेल्स है बुक में, इंक्लूडिंग द पिक्चर्स। जैसे आई रिमेंबर हमारे पास वो पॉलिटिकल लीडर के फिगर्स आते थे, तो उनके नाम देख लेना, क्योंकि यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी आ सकता है, तो जस्ट गो थ्रू दैट। ओके एंड लास्ट वन। NCERTs तो है ही। बाकी पॉल साइंस के लिए जो लाइक मेरा था, तो मैं एक टीचर का नाम लेती हूँ, मोइन सर, ओके अड्डा के फैकल्टी हैं, उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और अगर लास्ट मिनट जैसा चाहिए होता है ना, कि कभी कभी हमने वो वाला चैप्टर नहीं टच करा होता या जो भी चीज़ है, तो उनके वन शॉट देख लेना। हमारे बैच के रीस्टार्ट सीरीज़ थी, तो वो बहुत अच्छी थी। और लाइक क्वेश्चंस तो NCERT के ही हैं, बट जब आपको लास्ट मिनट के ऊपर ऐसा हो जाता है ना कि एकदम लास्ट में हाँ रैप अप हो जाता है हर एक चीज़, तो उनकी वीडियोस बहुत अच्छी थी। So you can practice करने के लिए one shot videos are there at the end. So I think all of this comes in the last 10 days. हाँ But लास्ट then में। right now they can inculcate other than reading NCERTs, they can do image based questions and maybe mocks and PYQs from tomorrow, like day after tomorrow itself they can include it. अभी के लिए तो आई Anything गेस else they need to add? I'm sorry to नहीं सॉरी, अभी के लिए तो मेरा ऐसे है कि जैसे जो चीज़ मैंने करी थी, मॉक दो, जो क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं कि यार इसमें डाउट था, अगर तुक्के से कोई क्वेश्चन सही हो जाता है, वो वाला तुक्का पेपर में तो लगता है नहीं, जब हम इतने प्रेशर में होते हैं तो हाँ करेक्ट, तो वो वाले टॉपिक को ही फिर अच्छे से रिवाइज कर लो वापस जाके, क्योंकि अभी हर एक चैप्टर फिर से रिवाइज करोगे उतना टाइम है नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं। And geography के लिए in short and then psychology I think सिर्फ आपने पढ़ी है, तो after geography and you can do psychology as well. You can start here from ठीक geography. है, सो जोग्राफी के लिए भी सेम चीज़ कि लाइक फैकल्टी तो जहाँ से मैं ली भी थी, और जो मैं स्कूल तो चलो छोड़ ही दो, स्कूल में तो मैं जाती नहीं थी, तो दोनों साइड से ऐसा ही था। तो इसलिए जोग्राफी के लिए बस NCERTs, और जोग्राफी मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है कि उसमें अब NCERT खोलोगे तो समझ नहीं आता, इतना सारा वो डाटा भी है एक साइड, क्योंकि हमारा 12th में पूरा ह्यूमन जोग्राफी चलता है। हाँ मतलब डेटा भी है, हर एक चीज़ है, तो उसके लिए जोग्राफी के लिए तो PYQs पहले देखो। अच्छा PYQs और मॉक टेस्ट वगैरह जहाँ यहाँ से फ्री से मिल रहे हैं, वहाँ पे पहले देख लो, उसके बाद फिर अपना चैप्टर पढ़ो, तो बहुत दिमाग में आ जाता है कि अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं। okay and next. जोग्राफी के लिए आई वुड लाइक टू से फैक्ट्स फिल्टर आउट करो, क्योंकि पूरी बुक्स फैक्ट से भरी हुई है, आप कितना पढ़ोगे। तो जस्ट
पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, लाइक आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग अ कोचिंग और स्कूल टीचर्स, उनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप पूछो, क्योंकि हर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, पूरी बुक्स में फैक्ट्स भरे हुए हैं। इनफैक्ट ऑल्सो कई फैक्ट्स पुराने भी हैं, 11 के हैं, 15 के हैं, तो डोंट गो विद देम। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें फोकस करते हुए वैसे चलना। और जोग्राफी में प्रैक्टिस ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो एज खुशी सजेस्टेड PYQs देख लेना पहले ही। Okay, and don't say geography. I think this covers geography mostly. Just- Psychology. Okay, so for the psychology, I would suggest go with the one chapter at a time. Like एक chapter उठाओ, उसके question solve करो, क्योंकि chapters काफ़ी lengthy हैं psychology में, and it also asks for a little bit of analysis and interpretation. So also case studies भी आती हैं psychology में, वो तुम you can't predict कहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे chapters में बहुत सारी case studies बन सकती हैं। Like we have disorder वाला chapter, उसमें ज़्यादा probability होती है because they ask what is कौन सा disorder है and everything, like case studies में देते हैं। तो go with chapter wide, उसके PYQs है mock solve करो, and that will give you pretty much clarity। उसके बाद जाके cumulative way में like पूरा एक mock practice कर लो कि हाँ like मैंने chapter wise कर लिया, now we'll go for a comprehensive वाला thing, like पूरे chapters में लाके। Okay, so now I'm just gonna recap every point that you've given me and give them like a 30-day plan. Anywhere I'm wrong, feel free to interrupt, ठीक है? So for the first 10 days, जो मतलब आप कल से ही start कर सकते हो, get good with your concepts on NCERT. For political science and history mainly, geography के लिए look at questions that already come and then get into it the next 10 days. And you can start PYQs mocks for all of the subjects. Psychology के लिए one more thing, go chapter wise for each of the topics, right? Okay, so this is for the first 10 days. Next 20 days, you get into the one-shot videos and then you get into everything that you missed out. तो आप पहले 10 दिन में जो भी आप mock दे रहे हो, PYQ दे रहे हो, you can figure out which chapter you've missed, right? वो DUBT पे मिल जाएगा, होपफुली बाकी लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप अलग जगह से कर रहे हो, तो वो चेक कि कौन से चैप्टर्स में आप वीक हो नेक्स्ट 10 डेज में, गेट गुड एट देम। यूट्यूब पे देयर आर मेनी टीचर्स, दे हैव नेम्ड देम, यू कैन गो चेक देम आउट। एंड लास्ट 5 डेज पे जब हम आते हैं, सो दैट स्ट्रैटेजी इज जस्ट not even practice that much, It's just about revising the stuff, so like keeping notes बनाए, cool. key points, bullet points बनाए, just retaining that stuff. लास्ट के 5 डेज तो ऐसा हो जाता है कि भाई अब क्या करें, अब लाइक कितनी प्रैक्टिस करें, लाइक मेरे साथ हाँ बस हो गया, अब बस पेपर दे आओ। Okay. वही। और एक पॉइंट जो मैं कहना चाहूँगी कि अभी जैसे कि ना बहुत सारा रिसोर्सेज है, मॉक टेस्ट तो भरे पड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, तो कभी कभी बहुत सारे ऐप्स पे, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आंसर कभी कभी गलत फीड हो जाते हैं। उन गलत आंसर्स के ऊपर अपना दिमाग मत खराब कर देना। मेरे पूरे 2 दिन खराब हो गए, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है वो एक क्वेश्चन के ऊपर ज्योग्राफी का वो था, और वो फैक्चुअल था, और लाइक I know this is true. I'll tell you why this also happens. क्योंकि क्या होता है, NTA has made PYQs and mostly PYQs पे based भी mocks आते हैं और उनकी आंसर की आती है, और आई थिंक आप लोग भी जानते हो NTA को गलत निकली है पहले भी, तो इसलिए डोंट मेस अप योर हेड, what you know is true is from NCERT, ठीक है? NCERT जो हाँ, NCERT बस। में लिखा है उसको बेस लेके चलना, बाकी इधर उधर जो भी सोर्स है उसको जाने दो, जो NCERT में लिखा है वही बस सोल। Okay, so Because also the fact कि हमारा सब्जेक्ट theoretical है, तो possibilities of the questions are quite limited, like वो कितना ही पूछ लेंगे, तो just do NCERT, you are good to go उसके बाद। जो आंसर गलत है उसे गलत रहने दो। Okay, so I think that covers it for the strategy wala part. Now let's talk about Miranda a bit, how you've enjoyed it till now. And yeah, so we'll start with Khushi only over here. मिरांडा बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, I agree. और क्या बोलूँ, मिरांडा की सोसाइटीज़ बहुत अच्छी हैं, जिसमें मेरा नहीं हुआ, और क्या हाँ, तो और हाँ मतलब मिरांडा अच्छा है, आना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक जो चीज़ें मैंने समझी है लाइक मिरांडा के बारे में, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एक हिंदू में हैं और LSR ये इन सब में है, लाइक जब आप एक बार कॉलेज में आ जाते हो ना, पढ़ाई एट द एंड आपको खुद करनी है। लाइक मेरे दिमाग में कॉन्सेप्शन था, पता नहीं मैं शायद थोड़ा सा वैसे सिली कॉन्सेप्शन था कि मैं टॉप कॉलेज में पढ़ रही हूँ तो वहाँ पे टॉप फैकल्टी होगी, okay. ये अच्छी faculty है, दिल्ली मतलब यूनिवर्सिटी में सेम फैकल्टीज रहती सेम ही है, हाँ सेम है। But then I think I'll interrupt over here. Differentiating factor जो आता है, it's from the students, right? I have a mic. That's it. We'll just cut from that part and we'll continue from interrupting her. I think the differentiating factor actually comes with your friends, not from the faculties. करेक्ट। Yeah. और लाइक दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है, लाइक जब मैं अभी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करती हूँ, तो एक जो हल्का सा बेनिफिट मुझे मिल जाता है, विच इज़ माई टैग ऑफ बीइंग मिरांडियन। तो जैसे ही मैं बोलती हूँ कि मैं मिरांडा हाउस से हूँ, तो उनके क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, उनका क्वेश्चंस हाँ जी परसेप्शन काइंड ऑफ कि वो मिरांडा से है, तो फिर अब तो थोड़ा और अच्छे से पूछना पड़ेगा। Okay. इट्स लाइक वो थोड़ा अज्यूम्ड होता है कि बहुत ऐसे सेवी टाइप के, बहुत इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ होंगे बच्चे। That's इट्स लाइक wonderful. हाँ And then, है। okay, and we'll just move on to Bhavini right now. Do you want to say something?
If you want to, okay, no, that's all right. So cut that part out. And from Bhavini, I'll ask you this question since I haven't asked them this. The friends, is there a possibility that they push you forward into a lot many of new things that you never thought you'd do? सी मिरांडा में आपको हर टाइप के मिलेंगे, मतलब जैसे एक परसेप्शन बना हुआ है मिरांडा की गर्ल्स के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट. मुश्किल से 1-2% वैसी होंगी, बट देयर आर ऑल टाइप ऑफ गर्ल्स. तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा ग्रुप चूज़ करते हो. चूज़ इट वाइजली क्योंकि इसने मुझे चूज़ करा है. तो वो चीज़ है. तो चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि वही आपके साथ रहने वाले हैं. और जो ग्रुप्स फर्स्ट ईयर में बनते हैं वो नहीं रहते हैं. तो वो भी थोड़ा देख के चलना होता है. आप तो फर्स्ट ईयर में ही हो ना अभी. वही तो पता कैसे चल गया. That's all right. ठीक है. बहुत ग्रुप्स बनेंगे, बहुत टूटेंगे, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बस वो अपनी लिमिट्स जानना कि आपको कहाँ तक कितना करना है, उस पर स्टिक रहना. Okay, and we'll just last question आपसे ही end कर लेंगे. How many skills have you actually picked up from being in Miranda? Being in Miranda, I think it has groomed my personality a lot. Like I was not the same I was back in the school. Like काफ़ी change आया in terms of talking and such, because it makes you little sociable because you are exposed to certain like-minded people. तो like बहुत अलग अलग thoughts, ideation वाले लोग हैं. टॉक्सिसिटी भी थोड़ा ऐसा जाना जाता है. आई नेवर फेल्ट अभी तक, मे बी आई डोंट नो, अभी 2 साल बचे हैं. बट हाँ, फर्स्ट सेम इज़ काइंड ऑफ थोड़ा नाइव, यू आर डाइसी क्योंकि ग्रुप्स नहीं होते. बट हाँ, सेकेंड सेम यू गेट अ लिटिल बिट क्लैरिटी कि हाँ, आई फिट इन सच ग्रुप, दीज आर माई पीपल काइंड ऑफ सॉर्ट. बट हाँ ठीक है, अभी तक तो अच्छा चल रहा है. अभी फेस्ट सीजन है तो लेट्स सी. Okay, हाँ, अभी तो okay. हर रोज कुछ ना कुछ. अभी तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है कॉलेज फेस्ट वगैरह से. भाई बहुत मज़ा आता है. ड्यू ज़रूर आना. एक चीज़ मुझे बोलनी थी, प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बनाना, क्योंकि ये चीज़ होती है आपके मार्क्स कितने भी आए, अगर प्रेफरेंस लिस्ट में कुछ हो गया तो सब कुछ हाथ से चला जाता है. तो प्रेफरेंस लिस्ट के लिए आप किसी ना किसी सीनियर से बात कर लेना, क्योंकि जो भी इंस्टा पे आप कहीं भी रीच आउट करो, लिखा होता है ड्यू, तो उनको रीच आउट करना, उनसे पूछना, सजेशन ले लेना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सब हेल्प करने को रेडी रहते हैं. बट प्रेफरेंस शीट बनाते हुए काफ़ी ध्यान से रखना. अब वो आपकी चॉइस है, आपको कोर्स प्रेफर करना है या कॉलेज, बट दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अपने विजन क्लियर रख के उस अकॉर्डिंग बनाना. Okay. लाइक ये प्रेफरेंस लिस्ट के लिए तो मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हो गया था कि उसने कुछ 46 या 56 कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट में आई थी, और वो थी ओबीसी कैटेगरी से एंड नॉन क्रीमी लेयर से थी, और उसका स्कोर था 682 समथिंग. तो उसको आराम से एक अच्छा कॉलेज मिल जाता क्योंकि उसकी कैटेगरी थी उस वैसी. बट उसने प्रेफरेंस लिस्ट में अपने 16th प्रेफरेंस में रामजस कॉलेज रखा. प्रॉब्लम रामजस से नहीं, प्रॉब्लम उसके कोर्स से थी, बीए प्रोग्राम विद संस्कृत. Oh, damn. और उसको वो करना नहीं था, मतलब कोर्स अच्छा है बट उसको वो करना नहीं था. एंड पता नहीं उसने क्यों रख दिया. एंड देन उसे वही मिल गया फर्स्ट लिस्ट में, एंड वो इतनी लाइक डीमोटिवेटेड हो गई कि यार अब सेकंड लिस्ट का मुझे वेट नहीं करना. तो लाइक फिर उसने ठीक है विड्रॉ वगैरह कर लिया. नाउ शी स्टडिंग इन महारानी कॉलेज, जो बहुत अच्छा कॉलेज है. बट एक होता है ना, आपका एक ड्रीम होता है जो आप 2 साल से कैरी कर रहे होते, दैट हम जाएंगे DU में जाएंगे, वो एकदम से शैटर हो गया. तो आपका चाहे स्कोर कितना भी है, आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छी होनी So चाहिए. if you can't find any senior to help you out, we also help you out. Just come. Videos वगैरह में भी will help you out anyway. And so yeah, I'll just end it right here. Thank you so much, Khushi. We go Bhavini, and yeah, we'll just do a hi in the air. Okay. Okay. So if you've enjoyed the video, and I think अगर आप इस स्टडी को follow करते हो, I'm 90% sure आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आ ही जाओगे, and great colleges भी आपको मिलेंगे. So follow it like dot by dot. सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ो, and maybe I'll see you in DU and enjoy. Yeah, so we'll just cut away. Bye. Oh, yeah, I forgot to say subscribe. Subscribe to DU, buddy. Yeah, okay, we'll end over there. Yeah.